All right. Hi, everyone. Good morning. Yeah. Hi. Good morning, Chitraksh. Good morning, Prateek. Hi, Harsh. Just a minute. Huh. All right. Good morning, Jyot. Hi, Purva. Hi, Riya. Okay. So कल की क्लास का जो हमारा डिस्कशन था उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं with some background points that I had not mentioned, जिसकी वजह से we were facing some challenge in connecting some dots. तो वही बैकग्राउंड मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ. Let's put up that heading as Introduction to Quantum Mechanical Model of Atom. Now, इसके पहले I had not given you enough background or enough context about the quantum mechanical model of atom. I had just asked you to understand the results and remember those results as we go along. Okay, and I think we have reiterated multiple times what those results were. Okay, it took us a couple of lectures to gather all those results. And the easy or the fortunate aspect with those results is that उनके questions काफी straightforward रहते हैं. There isn't much of tricks or jugglery that can happen in those questions. Right? Results हैं सीधे सीधे वो results याद रखने हैं and उनको as it is questions में apply करना होता है. Now, अब after getting a good hold of that results, here are some questions or some topics which require you a little bit of more background about this quantum mechanical model of atom. Right? So यहाँ पर उसका ये introduction है आपके लिए that this model of atom is based upon the wave nature of electron. Okay, it actually you can say is based upon dual nature, but it starts off with wave nature of electron. It tries to understand or describe electron as a three-dimensional standing or stationary wave bound around the nucleus, right? And इसका visualization मैंने आप लोगों को last class में बताया भी था through those membrane diagrams, through those drum-based diagrams, right? And I also helped you realize an important point that ऐसा नहीं है that around a center, around a nucleus सिर्फ एक ही type का standing या stationary wave create हो सकता है. There can be many types of standing or stationary waves that can be created. तो उसी तरीके से when nucleus is present around the electron, it need not be just one wave or one waveform that is possible. There are many, or you can say practically infinite waveforms which can be present around the nucleus. Now, उन सब waveforms को mathematically describe करने के लिए Erwin Schrödinger wrote an equation. Right? Erwin Schrödinger developed a general mathematical equation to describe such three-dimensional or standing electron waves bound around the nucleus. ठीक है, क्या होता है वो जनरल इक्वेशन, वो इक्वेशन कैसा दिखता है उसके लिए आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू नीड टू नो दैट दिस इक्वेशन वाज डेवलप्ड बाय एर्विन श्रोडिंगर. Now, when this equation is solved, this general equation that is solved for, we get various solutions, right? And इसके पहले हम लोगों ने ये direct connection establish कर लिया था that those solutions are what give us the orbitals, right? But last class में मैंने आपको बताया था that there are couple of other things which happen in between. तो वो आप notice करना, ठीक है, before I start talking about orbital. ठीक है, यहाँ पर ये words notice करना. When the Schrödinger equation is solved for a single electron system, say like hydrogen atom, we get many solutions, and each such solution gives us the possible energy level that the electron wave will have, okay, and its corresponding mathematical equation जिसे हम लोग wave function कहते हैं. ठीक है, that wave function is represented by this symbol, this Trishul symbol. It is called as psi.
right? And when written in Cartesian coordinate system, it's a function of x, y, z and of course time. ठीक है, कैसे ये इक्वेशन लिखी जाती है, कैसे ये सॉल्व करी जाती है, क्या उसके सॉल्यूशंस आते हैं, राइट? ये सब की मैथमेटिकल डिटेल्स में हम लोग नहीं जा पा रहे, ठीक है? ऑल वी आर नोटिसिंग राइट नाउ इज दैट ये जो सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, ईच सॉल्यूशन is a possible answer to understanding how the electron is present around the nucleus, right? So each solution is associated with a possible energy level and the corresponding wave function. ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अब नोटिस करना, ये जो वेव फंक्शंस हैं, ठीक है, जो इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको इंटरप्रेट करा एक और फेमस साइंटिस्ट ने कॉल्ड मैक्स बॉर्न, ठीक है, अनदर फेमस साइंटिस्ट who was awarded Nobel Prize for his interpretation of the wave function. He provided this interpretation that square of the amplitude of the wave function is directly proportional to the probability of finding electron, right? So जैसा आप लोगों को याद हो विजुअलाइजेशंस जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, या किसी भी वेव के बारे में आपको पता हो, कोई भी एक जनरल वेव, like for example this simple water ripple या water wave, right? You understand that amplitude is defined at different locations, ठीक है? इनफैक्ट ये वाला एग्जाम्पल की जगह ये तो ट्रैवलिंग वेव हो गया, लेट मी टेक अ स्टैंडिंग वेव का एग्जाम्पल, ठीक है? एक सिंपल स्टैंडिंग वेव का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूं। याद है मैंने क्या बताया था एक सिंपल स्टैंडिंग वेव का एग्जाम्पल? आपने एक रबर बैंड लिया एंड उसके दोनों एंड्स को टाई कर दिया एंड देन यू प्लग दैट रबर बैंड, राइट? तो इट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन। तो ये आपने एक स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव जनरेट कर दी विच इज बाउंड विद इन दिस रीजन, ठीक है? नाउ कैन यू सी दैट ईच पॉइंट of this rubber band or this wave has a different amplitude? मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उसका एम्पलीट्यूड, राइट, से प्लस एक्स या माइनस एक्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू रीड इट। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसका एम्पलीट्यूड प्लस वाई एंड माइनस वाई, राइट? सो स्टैंडिंग वेव्स के साथ में what we understand is that यहाँ पर different points have different amplitude और different locations पर different amplitude of wave is present, ठीक है? तो इसी चीज को जब 3 डायमेंशनल में श्रोडिंगर ने लिखा तो उसको मैक्स बॉर्न का इंटरप्रिटेशन दिया गया, मैक्स बॉर्न ने इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करा दैट ये जो वेव फंक्शन लिखा जा रहा है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, इसका जो वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है, स्क्वायर, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो स्क्वायर ऑफ दैट एम्पलीट्यूड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो स्क्वायर ऑफ दैट एम्पलीट्यूड of the wave function is directly proportional to the probability of finding the electron. This is an important interpretation that was given by Max Born, ठीक है? अब ये एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है, ठीक है? एम्पलीट्यूड निकलता है इस वेव फंक्शन में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है? जो दिस इंटायर इक्वेशन है इसको हम लोग वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है? दैट इंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज कॉल्ड एज अ वेव फंक्शन। अब आप इसमें किसी पर्टिकुलर
पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, लाइक न्यूक्लियस ओरिजिन पर है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको अगर इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड डालना होगा तो आप उस लोकेशन का x, y, z कोऑर्डिनेट यहाँ पुट करोगे, उससे जो साई का वैल्यू आता है उसको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हाउ डू यू गेट दिस? यहाँ पर मैं वापस से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, वी गेट दिस बाय सब्सटीट्यूटिंग x, y, z वैल्यू। ठीक है, और यू कैन से, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इंग्लिश में लिख देता हूँ आपको। वी गेट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव at a location by substituting its coordinates। क्या होते हैं उसके coordinates? x, y, z in the wave function। what is the wave function? psi x, y, z। ठीक है, टाइम का फैक्टर हटा देते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑब्जर्व करते हैं। तो जो वैल्यू आती है वो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन कहलाता है, एंड स्क्वायर ऑफ दैट एम्पलीट्यूड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the probability of finding the electron around the nucleus। ये मैक्स बॉर्न ने बोला। कैसे बोला, उसके पीछे की मैथ्स क्या थी? ठीक है, अभी आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैक्स बॉर्न ने बोल दिया based upon his mathematical work that this is how you can relate to the probability of finding the electron। ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया? Sir, हाँ sir, in this value psi, why do we write it as f of x comma y comma z instead of f of r comma theta comma phi? वो अब करेंगे ना हम, अब मैं वहां पर आ रहा हूं। Okay, sir. सर हाँ, सर मैक्स बॉर्न को ये थियोरेटिकली उसने फाइंड किया या एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया ये नहीं नहीं, रिजल्ट? थियोरेटिकल था, मतलब इसका इंस्पिरेशन साउंड वेव्स वगैरह से आता है। ठीक है, बट आपने साउंड वेव्स अभी पढ़े नहीं है तो इतना क्लियर नहीं है आपको, बट मैथमेटिकली ही था। ठीक है, इवन द श्रोडिंगर इक्वेशन इज मैथमेटिकल। ऐसा किसी ने देखा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसा होता है। नोबडी नोज हाउ द इलेक्ट्रॉन इज। सो ये जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हमने निकाले हैं, बताएं, ये सब मैथमेटिकल है। नोबडी हैज सीन कि अरे ये ऑर्बिटल का शेप है। नो, it is all entire mathematical driven analysis, and it is currently accepted as the modern or the advanced version of structure of atom is because it is a robust explanation for what we observe, how atoms or molecules are behaving macroscopically। So, हाँ, so the amplitude of wave function of the electron and wave function are represented by the same thing, right? Psi. हाँ, सो साई का जो पूरा इक्वेशन होता है, ठीक है, अगर मैं आपके सामने लेट्स से, आई थिंक मुझे आपको एक बार डरा देना चाहिए ताकि आपको एक दिमाग में थोड़ा सा फिट रहे। ठीक है, वेव फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हाइड्रोजन वेव फंक्शन। just give me a moment, if I find an image to scale you enough, then एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ज़्यादा मिलता है, कार्टेशियन में दिखने का चांस कम है।
जनरली पोलर 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 ही दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको लेट मी टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑल्सो, ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये सब हाइपर फिजिक्स पे दिखेगा आपको। एक मिनट, हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन, नहीं ये भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। तो ये ज़रूर थोड़ा सा मीजलर बुक का वो है पार्ट, जिसमें मतलब यू कैन सी ऐसे ये जो इंटायर फंक्शन रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा देखना यहाँ पर इजी नहीं लग रहा है। ठीक है, बट यू get a like entire function in terms of x, y and z। ठीक है, यहाँ पे सब पोलर ही दिख रहे हैं। ठीक है, ये जरूर एक स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पर से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, इसको इसमें पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। बट एनीवेज चलो, ठीक है, दैट इंटायर फंक्शन is called as the wave function, और उसमें I am saying that if I substitute the value of x, y, z of a particular point location, तो वहां पर कितना एम्पलीट्यूड है वेव का, इलेक्ट्रॉन वेव का, वो आपको मिल जाता है। Okay, sir. Thank you. And square of that amplitude was connected to the probability of finding the electron. ठीक है, that was something which was described by Max Born. Now having understood this much part, यहाँ पर ये नोट समझना। ठीक है, दिस नोट इज एक्चुअली अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ नोड्स। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन आपने क्या सीखा था? Probability of electron is 0. ठीक है, अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ नोड्स आप यहाँ पे नोटिस करना। ठीक है, नोड्स आर रीजन वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज 0। ठीक है, व्हाई? बिकॉज अगर एम्पलीट्यूड 0 रहेगा एंड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 आता है। सो जैसे ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया था, स्टैंडिंग वेव वाला। ठीक है, मान लो इफ द स्टैंडिंग वेव इज इन दिस मैनर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हमेशा एम्पलीट्यूड 0 ही रहेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, ये सिंपल मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो ऐसा लाइक 3 डायमेंशन में भी रहता है दैट इफ अ वेव फॉर्म इज क्रिएटेड, यू कैन फाइंड नोड्स एट सर्टेन रीजन्स जहां पर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन इज 0। ठीक है, तो ऐसे लोकेशंस को हम लोग नोड कहते हैं। ठीक है, बिकॉज द एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी 0, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, while introducing polar और spherical coordinate system, ठीक है, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने आपको दिया था
that जब इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन लिखा जाता है या सॉल्व करा जाता है in Cartesian coordinate system, so it becomes quite complicated and difficult to analyze. But when written in the spherical coordinate system or polar coordinate system, it becomes much easier to comprehend, much easier to grasp. ठीक है, सो आप नोटिस करोगे ये जो अपन ने ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है लास्ट क्लास का r थीटा फाई. आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट अगेन. हाँ सर. ये वाला पार्ट आपको लास्ट क्लास से याद रहेगा. ठीक है, नए हम लोग ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे, अभी नहीं. Okay, sir. Thank you. सो यहाँ पर हमने जैसा देखा था, when Schrodinger equation is written and solved in the Cartesian coordinate system, right, it is difficult to analyze, but when written in the polar coordinate system, the analysis becomes easier. The analysis becomes easier. Why? Because the wave function automatically breaks down into a separate angular component and a separate radial component. ठीक है, ऑटोमेटिकली जो वेव फंक्शन रहता है, टोटल वेव फंक्शन, वो दो सेपरेट पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा. एक रेडियल पार्ट अलग रहेगा और एक एंगुलर पार्ट अलग रहेगा. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू देन शो यू as the wave functions of different orbitals. ठीक है, in the spherical coordinate system or polar coordinate system, right? Not with an expectation that you need to remember them. ठीक है, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. But yes, आपसे उल्टा जरूर पूछा जा सकता है, given the wave function you ought to determine the orbital और उसके quantum numbers. तो उसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट देखा था, that if I give you the radial wave function, तो आप उस ऑर्बिटल का n और l वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? आप उस रेडियल वेव फंक्शन के पॉलिनोमियल पार्ट के ऊपर फोकस करते हो, राइट, एंड उस पॉलिनोमियल पार्ट के आप नॉन जीरो रूट्स के ऊपर फोकस करते हो. ठीक है, एंड दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. नाउ आई थिंक यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू कनेक्ट दिस. ठीक है, कैसे आप नोटिस करना, रेडियल नोड का मतलब क्या हो जाएगा? Spherical. ठीक है, Spherical. हाँ, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड का मतलब क्या हो जाएगा? Amplitude is 0. हाँ, it gives you that, These nodes are irrespective of their angles and are found at some certain distance from the nucleus. right? So it helps us locate a certain distance from a nucleus where the probability of finding the electron is 0. Right? That is what radial node means. Let's say if this is my nucleus, then at certain distance from it, the probability of finding the electron will be 0 for all the points on the surface of this sphere which are at a distance r from the nucleus. This is what radial node ka interpretation or spherical node ka interpretation was. Yes. अच्छा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिलेट करके दिया that the amplitude is related to the probability of finding the electron. तो अगर probability 0 है, that means यहाँ पर amplitude 0 होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब amplitude यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन है वो 0 होना चाहिए. तो what is it that is on the right hand side that can become 0? A constant term can't become 0, right? Exponential term e की पावर माइनस x या e की पावर माइनस r, ये कभी 0 हो सकता है? नहीं. मतलब r अप्रोच करेगा इंफिनिटी तो फिर ये टर्म अप्रोच करेगा 0 को, बट एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा ना. हाँ, sir. ठीक है, so what is it that can be 0? It is the polynomial term only, right? So that is where मैंने आपको बोला कि polynomial term के ऊपर फोकस करो. ठीक है, once you focus on the polynomial term and you equate it to 0, so that is where I asked you, you take this polynomial term and equate it to 0. Once you equate a polynomial term to 0, what is it that you are able to get? You are able to get its roots,
Yes, sir. तो अब जितने इसके रूट्स होंगे और जितने नॉन जीरो रूट्स होंगे, क्योंकि जीरो रूट मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को तो हम वैसे ही नोड काउंट नहीं करते हैं, है ना। मतलब अगर आपका पॉलिनोमियल मान लो r² प्लस r प्लस 1 ऐसा कुछ है, तो इसमें देयर इज नो नॉन जीरो रूट, ठीक है। लाइक मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक ar² प्लस br प्लस c, इसमें कोई भी नॉन जीरो रूट नहीं है, बट इफ आई टेक दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल ar² प्लस br, इट इज द पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे, ये ar प्लस b और ये r है, राइट। तो एक रूट क्या हो गया इसका, 0, और दूसरा रूट क्या हो गया, माइनस b बाई a। हाँ सर। Yes, sir. इस रूट को हम लोग नोड नहीं काउंट करेंगे, लाइक वी विल नॉट काउंट दिस एज नोड, वी विल नॉट पुट दिस एज नोड, बिकॉज this is nucleus only, r equal to 0 is nucleus, but this location r equal to minus b by a, this is a node, जहां पर ये पॉलिनोमियल पार्ट 0 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। हेंस द स्टेटमेंट that number of non-zero roots of this polynomial will give you the number of radial nodes, and that is why we related this to n minus l minus 1, ठीक है। सर वो न्यूक्लियस वाला एक बार बता सकते हो क्या वापस? क्या वाला? न्यूक्लियस न्यूक्लियस सर, आपने बोला ना 0 होगा तो न्यूक्लियस ही सो होगा वो। यहाँ पर जैसे आपने ये पॉलिनोमियल्स देखे, ठीक है, आप ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल के पॉलिनोमियल देखना, तो जैसे आप 3D का आप नोटिस कर रहे हो पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, जस्ट सिग्मा स्क्वायर, है ना। यस सर। अब ये जो सिग्मा स्क्वायर है, इसके कितने रूट्स हैं, 2 रूट है, एंड दोनों 0 ही है ना। तो ये क्या बता रहा है कि अगर मैं सिग्मा का वैल्यू या r का वैल्यू 0 रख दूंगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, रेडियल वेव फंक्शन मतलब जो टोटल वेव फंक्शन है वो भी 0 हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी 0, ठीक है। बट उसको हम लोग नोड नहीं काउंट करते ना, वी डोंट काउंट r इक्वल टू 0 या फिर न्यूक्लियस एज नोड। तो यहाँ पर जो ये 3D का ऑर्बिटल है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि इसके पॉलिनोमियल के कोई भी नॉन जीरो रूट्स नहीं है, तो इट हैज गॉट नो रेडियल नोड्स। अगर आप 3p का देखोगे, इसके ऊपर का देखो, चलो ये 3p वाला देखो, इसका पॉलिनोमियल पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये इसका पॉलिनोमियल पार्ट है, यस सर। राइट। हाउ मेनी रूट्स, और क्या डिग्री का पॉलिनोमियल है पहले ये बता दो, चलो। सर लीनियर है। 2 डिग्री का है, Yes. ठीक है। कितने रूट्स होंगे इसके, 2. 2 रूट होंगे, एक रहेगा 0, एक रहेगा 4, है ना। तो Yes. इसको Yes. हम एज रेडियल नोड नहीं काउंट करेंगे। दिस इज व्हाट आवर रेडियल नोड वुड बी, दैट सिग्मा इक्वल टू 4, सिग्मा मतलब ऐसा 2z r अपॉन 3 a नॉट, तो इससे आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, r इससे आपको कितना मिल जाएगा, 6 a नॉट अपॉन z। इस लोकेशन पर आपका, ठीक है, इस वैल्यू ऑफ r के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दिस इज योर रेडियल नोड। For that value of sigma, the non-zero value, your radial wave function will become 0. Your radial wave function will become 0. Hence, the probability of finding the electron will become 0. ओके सर। ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज मैंने आपको समझाई कि जो पॉलिनोमियल है उसका आप एक तो डिग्री नोटिस करो, ठीक है, डिग्री से आपको
n-1 की वैल्यू मिलती है, ठीक है, और दूसरा आप उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स नोटिस करो, ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स गिव यू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स दैट ऑर्बिटल विल हैव। तो इन दो इक्वेशन से आपका n और l सॉल्व हो जाता है, यू गेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द अजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे आपको मैंने ये एग्जांपल्स करवाए थे, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, ये दो एग्जांपल अपन ने देख लिए थे ना, Yes, sir. राइट, यू बोथ वर कंफर्टेबल विद दिस एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल के साथ में कंफर्टेबल थे, ठीक है। तो ये तीसरा वाला एग्जांपल भी ट्राई करके मुझे इस ऑर्बिटल का n वैल्यू और l वैल्यू बता दो। ये मैंने रेडियल वेव फंक्शन दिया है किसी ऑर्बिटल का, राइट। सो यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना दिख रहा है, इट्स अ क्यूबिक, Yes, sir. सो n-1 इज 3, ये एक इक्वेशन हो गया, n का वैल्यू 3 पता पड़ गया आपको, सॉरी n का वैल्यू 4 पता पड़ गया, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्या क्या दिख रहा है, 1 2 and 6. so you are getting 3 non-zero roots, hence n minus l minus 1 is equal to 3. so यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा that this is 4s orbital, right? So the degree of polynomial, that the n-1, that's just a formula to find n, right? हाँ, Okay. Sir, a 4s orbital, not a 5s one. sorry, So it won't be 5s orbital. नहीं 5s क्यों आया आपका, n का वैल्यू तो Others 4 है, equal to 5. हाँ, Okay, so previous question. प्रीवियस वाले में तो 5 ही था ना, मतलब ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन वाज, So I solved the wrong question. Sorry. अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखना, apart from telling you the n and the l value, ठीक है, apart from giving you the n and the l value, this radial wave function also provides you the location of radial nodes, ठीक है, रेडियल नोड्स कहाँ पे होंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स तो आपको निकालना ही गया है, हाउ डू यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फ्रॉम द रेडियल वेव फंक्शन, यू जस्ट कंप्यूट कितने नॉन जीरो रूट्स हैं, ठीक है, बट जो वो रूट्स हैं, जो वो लोकेशंस हैं जिनके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, दोज आर द लोकेशंस वेयर द नोड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द 3s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ठीक है, ये 3s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ये आप खुद भी जज कर सकते थे, हैड आई नॉट जस्ट नॉट मेंशन 3s,
यू कुड हैव जज्ड कि 3s का रहता, कैसे आप बोलते ये स्क्वायर एज इन क्वाड्रेटिक है, तो n-1 इज 2, ठीक है, एंड इसके कितने नॉन जीरो रूट्स दिख रहे हैं? 2 नॉन जीरो रूट्स दिखेंगे आपको, तो इससे आप गैस कर लेते दैट n का वैल्यू 3 रहेगा एंड l का वैल्यू 0 रहेगा, ये 3s ऑर्बिटल रहेगा। बट ओवर एंड अबव दैट आई एम नॉट आस्किंग कि ये 3s ऑर्बिटल है, ये तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि ये 3s ऑर्बिटल है। आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, 2 नोड्स हैं, एक पास होगा एक दूर होगा, तो वो दूर वाले नोड का डिस्टेंस पूछा जा रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस कितना होगा, बता पाओगे? एक बार ट्राई करोगे? हाँ, राइट गार्गी, राइट हर्ष। बाकी और किसी का आ रहा है आंसर? हाँ हाँ हर्ष, करेक्ट है आपका आंसर। Right, C option is the
करेक्ट आंसर। तो कैसे निकाला आप लोगों ने ये? आप लोगों ने So we'll find the value of, you will find the value of sigma for which yes. this polynomial is 0, right? Basically इस polynomial के roots निकाल लिए। If I put this values of sigma, these two, तो ये polynomial 0 हो जाएगा, right? यानी कि amplitude 0 हो जाएगा, यानी कि probability of finding the electron 0 हो जाएगा। तो आपको दो वैल्यूज आए सिग्मा के, एक 3 माइनस रूट 3, एक 3 प्लस रूट 3, राइट? आपको कौन सा वाला निकालना था? The one which is further from the nucleus. So you decided to choose the 3 plus root 3 wala, right? The second one. समझ में आया? सिग्मा का वैल्यू 2rz अपॉन n a नॉट होता है। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो 3 वैल्यू हम लोगों ने ऊपर से उठा ली और उससे r का वैल्यू सॉल्व कर लिया, तो ये r का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, आई थिंक आपको शायद ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रहा होगा, हाउ टू इक्वेट सिग्मा एंड आर। ठीक है, सम स्टूडेंट्स डिड रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इससे आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, द लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रॉन इज likely to be found. So I didn't really understand this one properly. हाँ, तो आप मुझे बताओ ना, like what is it that you are able to first understand from the question? Sir, basically, I'm not understanding that how the roots are giving us the value of the radial distance. As in, how can we use that to get it? Because you need to connect to that Max Born का interpretation. That amplitude is related to probability, directly related to probability. तो अगर amplitude कहीं पर 0 हो रहा है, तो probability of finding electron 0 हो रहा है, Yes, sir. right? Amplitude is this value of psi becoming 0 when you put some values in this wave function, in this radial wave function. Yes, sir. ठीक है, so what should be the value of sigma for which this becomes 0? They are basically the roots of this polynomial, no? Yes, sir, roots. बस, तो वो निकाल लिए हमने, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल लिए, दैट सिग्मा 3 प्लस माइनस रूट 3 आर द रूट्स। अगर मैं वो पुट करूंगा इसमें, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। अभी समझ में आया? Yes, sir. So then after that, what have we found as in that R? हाँ, सो ये सिग्मा का वैल्यू मिल गया आपको 3 प्लस माइनस रूट 3। नाउ व्हाट वाज सिग्मा? ये ऊपर मैंने आपको बताया था दैट सिग्मा इज व्हाट कैप्चर्स आर, सिग्मा इज इक्वल टू 2zr अपॉन n a नॉट। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन में दे देना चाहिए था, वो नहीं दिया तो भी ठीक है, वैसे तो दे देना चाहिए था क्वेश्चन, एंड एक्चुअली दिया भी है। It's given. हाँ, it's given सिग्मा इज 2rz अपॉन 3a नॉट। तो आपने इसको 2rz अपॉन 3a नॉट को 3 प्लस माइनस रूट 3 के इक्वेट करा, तो आपको r की वैल्यूज मिल गई, राइट? सो दीज आर द लोकेशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस r1 एंड r2 जहां पर ये रेडियल नोड्स प्रेजेंट होंगे। Now I understood. Thank you so much. ठीक है, एक और बार ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। Yes, sir.
हाँ ठीक है, राइट गार्गी, राइट चित्राक्ष, राइट ध्रुव, राइट आदित्य, आर्य आदित्य। हाँ ठीक है, खुश, अभिमन्यु, पूर्वा, हर्ष, दिव्या, आप सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे वापस यहाँ पे आपने देखा सिग्मा की 3 वैल्यूज है 2, 1, 2 एंड 6 for which this polynomial part will become 0, right? So r is equal to a naught upon 2z, a naught upon z and 3 a naught upon z. These are the locations where the radial node will be found. तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन के बारे में आंसर करना है, तो वो आपका सी ऑप्शन आंसर रहेगा। राइट? Yes, sir. ऑलराइट, यहाँ तक का पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. अच्छा, अब नोटिस करना, ये रेडियल वेव फंक्शन के ऊपर हमारा फोकस था, ठीक है। अब मैं एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में भी बात करता हूँ। Although angular wave function isn't that easy to talk, isn't that easy to discuss, angular wave function थोड़ा tricky रहता है। Angular wave function में what we are seeing is that psi theta comma phi helps us to determine the L and ML of the orbital, the azimuthal quantum number and the magnetic quantum number of the orbital, ठीक है। But यहाँ पर challenge notice करना, it is not that easy to work out, it is not easy to figure out that pattern जैसा आपने पहले नोटिस किया था, ठीक है। यहाँ पर some useful points that can come to your rescue are as follows, that अगर आप कोई एंगुलर वेव फंक्शन देखोगे जिसमें थीटा का टर्म या फाई का टर्म है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, देन यू कैन से दैट इट इज एन एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए आप लिख सकते हो, आप नोटिस करोगे दैट इट डज नॉट हैव एनी थीटा और फाई का टर्म, ठीक है। मैं आपको ऊपर नोटिस कराता हूँ जो वेव फंक्शंस हमने देखे हैं। यू नोटिस 1s का वेव फंक्शन एंगुलर वाला कैसा है, इसमें थीटा या फाई है, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। आप 3s का भी देख लो, 1s का, 2s का, 3s का, like it's the same value, it's the same constant value, it does not have any theta or phi term, ठीक है। सो अगर आपके सामने कभी भी ऐसा कोई वेव फंक्शन आता है जिसमें ये थीटा या फाई का टर्म नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल,
then it is an s orbital only. ठीक है, अब इसी चीज को कई बार कुछ क्वेश्चंस में ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं. ठीक है, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. See if you are able to do the question or the calculation. It's a tricky question. ऑलराइट, कुछ आया इसका आंसर? मतलब देखो इस क्वेश्चन में जो लाइक ट्रिकी पार्ट है या जो लाइक अंडरस्टैंडिंग है इज द फैक्ट दैट ये जो एटम है इसका न्यूक्लियस 0,0 पर है और s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी जा रही है. s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है? s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ठीक है, so what it is then asking you or then telling you is that you know if I like try to draw न्यूक्लियस 0,0 पर है एंड ये a,0,0 पॉइंट जो है यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दी है कि यहाँ पर इस लोकेशन पर एक टाइनी वॉल्यूम के अंदर द प्रोबेबिलिटी इज 10⁻⁵. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर ने तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी सिखाई नहीं है. लाइक it has not been mentioned how to calculate the probability of the electron. Like वो बताया है कि probability is directly proportional to amplitude, but like he has not taught us what are the steps to calculate the probability of finding the electron. तो ये हम लोग क्या करें इसमें, मतलब how do we work with this? And उसके बाद पूछ लिया है what is the probability of the electron in the same sized volume at 0,0,0,a,0. ठीक है. Now this is where the trick of the question was, that both these points are actually lying on the surface of the same sphere. They are at the same distance from the nucleus. And जो s orbital का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी probability जो है वो सिर्फ distance पे depend करती है on not the angle. ठीक है, so all points on the surface of this sphere, ठीक है, not just this asked point but any point on the surface of this sphere will have the same probability of finding the electron. So जो आपको यहाँ पर given है वही आपका दूसरे पॉइंट पर भी रहेगा. And that is where you get A option as the answer. सर मुझे ना ये
टाइनी वॉल्यूम अज्यूम से समझा नहीं क्वेश्चन। हाँ, वो सेम वॉल्यूम वाला पार्ट आपको नहीं समझा होगा, वो सेम वॉल्यूम वाला पार्ट में थोड़ी सी देर में समझाता हूँ आपको, that why that same volume word is also important. बट अभी इतना पार्ट समझ में आया that लोकेशन आपका सेम डिस्टेंस से है फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट इज एन s इलेक्ट्रॉन, so that is why we understand that the probability will be same. वो सेम डिस्टेंस पे है, वो कैसे पता चला? एक बार प्लीज एक्सप्लेन करो अरे, मुझे वापस। आप इन दोनों पॉइंट्स, ये गिवन पॉइंट है और ये आस्क पॉइंट है, इनका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस नहीं पता तुमको? ए नहीं दिख रहा? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ओके सर, ये वाला पॉइंट न्यूक्लियस से ए डिस्टेंस की दूरी पर है, ये वाला पॉइंट भी न्यूक्लियस से ए डिस्टेंस की दूरी पर है। So, हाँ, so although we don't know to calculate the probability, but you said that amplitude is directly proportional to the probability, amplitude square. So then, in this case, we know that amplitude is represented by x comma y comma z and t also. So then, in this case, we knew that in both the places it's a, so it will be the same distance only. नहीं So- नहीं 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 नहीं, how can you say the amplitude is a? No, sir, I'm not saying the amplitude is A. I'm saying that we express the amplitude as x comma y comma z. So whatever the calculation may be, it will come out to be the same, right? The answer. But only because it is s orbital electron. मतलब had the wave function be something like, you know, x square plus y square plus z by 2 या like x square by 2 plus ऐसा कुछ होता, मतलब complicated सा होता, तो how can you say that the amplitude will be the same? Yes, sir, I'm saying for this case only that in this could we assume it that way that since both are A only, whatever the calculation will be, it will come out to be the same only. So then that's why we can assume that the answer will be the same. हाँ, so because it is spherically symmetrical, ठीक है, ये जो वेव फंक्शन है इसका रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट है, ठीक है, एस ऑर्बिटल है तो ये एंगुलर पार्ट तो कांस्टेंट है, ठीक है, एंड ये रेडियल पार्ट जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड बोथ दीज पॉइंट्स हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, Yes, sir. right? And that is where this is going to be same for both these points. Since amplitude is same, then you can now say the probability is same, and hence A option is the answer. Yeah. So we can assume it in that way also, right? Yeah. Okay. Thank you. ठीक, all right, now अब आप मुझे ये चीज देख के बताओ, इस क्वेश्चन में अच्छा, एक्चुअली एक और क्वेश्चन था बट चलो ठीक है, उसके पहले ये वाला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी नोटिस कर लेना। एक और जो एंगुलर पार्ट के बारे में आप नोटिस कर सकते हो इंफॉर्मेशन, वो है दैट अगर एंगुलर वेव फंक्शन जो है उसमें सिर्फ थीटा का टर्म मिले, देयर इज नो फाई, देयर इज जस्ट थीटा ओनली, ठीक है, देयर इज नो फाई, देन in that case how would the wave function be, उसके बारे में एस्पेक्ट नोटिस करना। अगर उसमें सिर्फ थीटा का टर्म है और अगर cos थीटा का टर्म है तो वो pz ऑर्बिटल होगा, और अगर
3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का टर्म है तो वो dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे ऊपर वेव फंक्शंस में, ठीक है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, राइट। s में तो खैर देयर इज नो थीटा, देयर इज नो फाई। कैन यू सी 2p के वेव फंक्शंस, एंगुलर वेव फंक्शंस? इसमें आप नोटिस करोगे 2px में 2py में दोनों में थीटा और फाई का टर्म है, 2pz में देयर इज ओनली थीटा एंड नो फाई। ठीक है, वैसे ही आप 3D में भी नोटिस करना। ठीक है, नोटिस ऑल द 5 3D के ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस, एंगुलर वेव फंक्शंस। यू विल फाइंड दैट 3D z स्क्वायर में सिर्फ थीटा का टर्म है, फाई का नहीं है, बाकी सब में थीटा फाई दोनों है। दिख रहा है? Are you able to see that? Yes, sir. ठीक है, तो फिर based upon this understanding now, अब आप आंसर कर लो। आई थिंक इस वाले अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस तो नहीं है, बट ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट रब द आंसर। हाँ, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? राइट, सो इसमें कैसे इंटरप्रिटेशन रहेगा अब आपका? यू कैन सी दैट द एंगुलर वेव फंक्शन इज जस्ट अ कांस्टेंट, राइट? This is not dependent on
थीटा और फाई, तो ये कैसा ऑर्बिटल हो गया? S orbit. एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो गया, राइट? एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मतलब L is equal to 0 and 2 radial nodes मतलब n minus L minus 1 is 2, so n क्या हो गया? 3. if L was 0 then n becomes 3, तो ये कौन सा हो गया? 3s ऑर्बिटल हो गया ना? समझ में आया सी ऑप्शन क्यों आंसर रहा है इसका? ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। ठीक है, आपको ये मैच द कॉलम करना है। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी जस्ट adjust the answer. हाँ, ठीक है, हिंट भी रहेगा साथ में। ओके, कौन सा px है, कौन सा py है? pz तो आई थिंक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैड जस्ट लर्नड ऊपर, that if the angular wave function does not contain any phi term, ठीक है, only theta is there, then it is pz. बट इसमें से कौन सा px है, कौन सा py है, ये आप मुझे बता सकते हो? And the hint is you can take help of angular nodes.
नहीं, डोंट ट्राई टू, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू दैट हिंट का एक्सप्लेनेशन. जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, हाउ इज द एंगुलर वेव फंक्शन एक्सप्लेनिंग द एंगुलर नोड. तो आपको इतना याद है pz ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होता है, कौन सा होता है, एक्स वाई प्लेन. इतना पार्ट याद है आपको. Yes, sir. अब नोटिस करना ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है, ठीक है, ये एंगुलर वेव फंक्शन कैसे इस नोडल प्लेन को एक्सप्लेन कर रहा है. सो इफ आई आस्क यू अबाउट the theta value of any point on the xy plane, what is your answer? You remember what theta was? Yes, sir. Theta was the angle of the point from the z axis. So if I ask you about the theta value of any point on the xy plane, the answer is 90 degree. है कि नहीं? And cos 90 degree क्या होता है? 0. Right? So for all the points on the xy plane, this wave function becomes 0. Angular wave function becomes 0. Angular wave function 0 हो जाएगा तो total wave function 0 हो जाएगा, तो probability of finding electron 0 हो जाएगा ना. समझ में आया? How you can connect the nodal plane, the angular node with the angular wave function. ये connection बैठ रहा है? सर मुझे वो cos थीटा 0 के बाद नहीं समझ में आया. Cos थीटा अगर 0, cos 90 डिग्री जो होगा, cos 90 डिग्री 0 होता है ना. हाँ सर. Right? Cos 90 डिग्री 0 होता है. Right? So in this angular wave function, ठीक है, ये angular wave function अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूं फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन आ रहा था थीटा 90 डिग्री. Yes, sir. राइट, सो देयर cos इज इक्वल टू 0. Yes, sir. तो यानी कि फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन दिस एंगुलर पार्ट बिकम्स 0. Yes, sir. तो जो टोटल वेव फंक्शन था दैट इज रेडियल पार्ट इनटू एंगुलर पार्ट. अगर ये एंगुलर पार्ट 0 हो गया तो टोटल वेव फंक्शन भी 0 हो जाएगा. Yes, sir. Understood. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 आ जाएगा ना ऑन द एंटायर एक्स वाई प्लेन. ठीक है. अब इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान से नोटिस करना यहाँ पर, ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, एक px है और एक py है. ठीक है, कौन सा क्या है वो हमें पता करना है. इन दोनों को मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा हूँ. सो इफ यू आर लुकिंग एट दीज, तो ये इतना पूरा पार्ट तो सेम है इन दोनों का. ये यहाँ तक का पार्ट तो एकदम सेम ही है ना दोनों का. व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग पार्ट बिटवीन दीज टू? द फाई टर्म, है कि नहीं? दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स द टू. तो अगर आप अब कोई भी एक ऑर्बिटल पकड़ो और उसका नोडल प्लेन, एंगुलर नोड नोटिस करो, तो इट शुड हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट विच विल बी द एंगुलर वेव फंक्शन. ठीक है, कैसे? अब आप नोटिस करना, इट्स नॉट इजी, मेरे को समझाने दो एक बार. वंस यू अंडरस्टैंड दैट एक्सप्लेनेशन देन यू शुड बी एबल टू कनेक्ट मच बेटर टू इट. तो यहाँ पर नोटिस करना, लेट्स से आई टुक py ऑर्बिटल. नाउ बेस्ड अपॉन योर नॉलेज यू नो py ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है. ये py ऑर्बिटल का शेप सबको आ जाएगा.
and based on your knowledge you also know that py orbital का nodal plane क्या होता है, ये भी आपको आता है, that this xz plane is going to be your nodal plane, है कि नहीं? अच्छा, अब नोटिस करना, if I ask you to calculate the phi of all the points on this xz plane, how do you calculate phi? Do you remember what phi was? Do you remember its definition? Phi was the angle of projection with the x-axis, right? तो अगर मैं यहाँ पर xz प्लेन के जो पॉइंट्स हैं इनको मैं प्रोजेक्ट करूंगा, कहाँ पर प्रोजेक्ट करूंगा? ऑन द xy प्लेन, तो क्या बन जाएगा? If I project all the points on the xz plane on the xy plane, तो क्या बनेगा? They all will lie on the x-axis. Yes, sir. है ना? मतलब आप ऐसे इमेजिन करो ना, यहां से मैंने टॉर्च जलाई, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू प्रोजेक्ट दिस ऑन द xy प्लेन, राइट? सो ऑल द पॉइंट्स, यहाँ पर ये स्टेटमेंट, ये इंग्लिश समझ में आएगी आपको? इफ वी टेक द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द x ऑफ द projection of the points on the xz plane on the xy plane, they would all lie on the x-axis. And what is the angle that they will make with the x-axis? Phi will be 0, है ना? Yes, sir. Right? So phi equal to 0 degree. अब कौन सा इन दोनों में से कौन सा ऐसा वेव फंक्शन है which becomes 0 for phi equal to 0 degree? Which of these two wave functions becomes 0 for phi equal to 0 degree? Sin phi. The sin phi wala. That means this should be the wave function that corresponds to the py orbital. This is what explains the angular node of py orbital. ठीक है, दोबारा समझना, एक बार में नहीं समझ में आता है, ठीक है, कम ही स्टूडेंट्स है जिनको एक बार में समझ में आएगा, तो यहाँ पे दोबारा से नोटिस करना, हाउ एम आई trying to establish the relationship, ठीक है? I am trying to establish the relationship between the wave function and its orbital. किस तरीके से मैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे ऑर्बिटल py के बारे में दो चीजें पता है, मुझे उस ऑर्बिटल का शेप पता है और मुझे इस ऑर्बिटल के नोड्स के बारे में भी आइडिया है। तो मैं यहाँ पर ये नोड्स वाली इंफॉर्मेशन यूज करके इसका वेव फंक्शन कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि कौन सा वेव फंक्शन जो है जो कि इसके नोड्स एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? तो मैंने क्या करा, इसका नोड स्टडी करा। दैट नोड कहाँ पर था इसका? पी वाई ऑर्बिटल का द नोड वाज द एक्जेक्ट प्लेन, ठीक है? अब इन सारे के सारे एक्जेक्ट प्लेन्स का मैंने फाई वैल्यू नोटिस करा। मैंने फाई वैल्यू क्यों नोटिस करा? बिकॉज इन दोनों वेव फंक्शन में जो अंतर है वो फाई का ही है ना? थीटा नोटिस करके मैं क्या करता? थीटा तो दोनों में सेम ही है ना, कोई फायदा ही नहीं होता थीटा नोटिस करके। सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं ये जो एक्जेक्ट प्लेन है इनके पॉइंट्स का फाई नोटिस करता हूँ। और फिर जब मैंने इनके पॉइंट्स का फाई नोटिस करा तो मुझे फाई 0 डिग्री समझ में आया। फॉर ऑल द पॉइंट्स दैट आर देयर ऑन दिस एक्जेक्ट प्लेन, फाई कम्स आउट टू बी 0, राइट?
since phi comes out to be 0, तो फिर इससे मुझे क्या समझ में आएगा, कौन सा ऐसा एंगुलर वेव फंक्शन है जो कि 0 हो जाएगा फॉर phi इक्वल टू 0 डिग्री। तो मुझे ये sin phi वाला टर्म दिखा, एंड हेंस आई कंक्लूडेड कि हाँ, ये वेव फंक्शन इज एक्चुअली जस्टिफाइंग हाउ द xz प्लेन इज नोडल प्लेन फॉर द pz ऑर्बिटल, सॉरी py ऑर्बिटल। समझ में आया? Sir, I understood it, but I didn't understand this thing that if we take projection of the points on xz plane on the xy plane, what do you mean by the xy plane here? xy plane is this plane, no? This is the xy plane. So if I ask you to project the xz plane ke points on the xy plane, won't they all be lying on this x-axis? X-axis. Yeah. But so the xz plane itself is also along the x-axis only, right? हाँ, but any point, let's say ये वाला point on the xz plane, it is not on the x-axis, no? But if I project it on the xy plane, the projection will lie on the x-axis, Yeah, the line. right? And how much angle will it make with the x-axis then? That is what phi Yeah, is. I understood that. At 0 part, degree. 0. ठीक है, तो ये एंगुलर पार्ट वाला थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, ठीक है। एंगुलर पार्ट वाले के लिए इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू मच ऑफ डिटेल, ये दिस इज द मैक्स डिटेल दैट आई वुड वांट टू गो इनटू। एंगुलर वेव फंक्शन के लिए जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, एक तो ये है और दूसरा ये है, राइट। अगर थीटा एंड फाई है ही नहीं वेव फंक्शन में तो वो एस ऑर्बिटल का हो गया, ठीक है। और अगर थीटा है फाई नहीं है देन इट विल बी आइदर pz और dz स्क्वायर। ये दो पॉइंट आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। और फिर अगर आपको और डिफरेंशिएशन करना रहता है, यू नो कौन सा px है कौन सा py है, या d ऑर्बिटल में डिस्टिंक्शन करना रहेगा, तो वो बहुत टेढ़ी खीर है। उसमें the hint that you can use is you can take help of angular nodes to actually figure out which orbital will be which wave function, ठीक है। बट वो इतना आसान पार्ट नहीं है। But yesterday you had made us draw the diagram. उसमें you had written what is sin phi and what is cos phi. हाँ, आप वो भी यूज कर सकते हो, बट वो और चैलेंजिंग हो जाएगा। मतलब आई थिंक आप ये वाला सोच रहे होगे दैट आई विल रिलेट टू दिस। Yes, sir. आई थिंक आपने इससे रिलेट कर दिया होगा कि सर आपने बताया था y क्या होता है और x क्या होता है, और अगर मैं उसको यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, तो आई कैन सी दैट ये साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, ये वाला रहता है, एंड साइन थीटा साइन फाई ये पी वाई वाला रहेगा, ठीक है। तो आपने इससे रिलेट कर दिया होगा, विच इज एक्चुअली अ करेक्ट वे इफ यू आर एबल टू रिलेट इट दिस वे, ठीक है। बट ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर इफ आई आस्क यू टू डू एनालिसिस अमंगस्ट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको एनालिसिस करने के लिए बोलूँगा ना, तो यहाँ पे आपको एक चैलेंज फेस होगा। Oh, okay, sir. ठीक है। Sir, हाँ, sir, is it right to think that since phi is with the x-axis, so like since the line axis and the angle x-axis and the opposite line will be y-axis, since cos phi will be x-axis and sin phi will be y. आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होगी पूर्वा, दोबारा बोलो। Sir, now is it okay? मतलब if you are using some earphone या headphone, No, sir. I'm directly speaking to the like mobile. हाँ हाँ अभी क्लियर आ रही है आवाज, अब बोलो। So I was asking that if we consider that phi is the angle made with the x-axis, so the adjacent line will be x-axis and hence cos phi, and the opposite line will be y-axis and hence sin phi. So is it right to say that way?
नहीं नहीं नहीं, ये तो एक आपने एक रैंडम सा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर लिया, बट इट इज नॉट अ रोबस्ट लॉजिक. इट विल नॉट वर्क. जैसे मैंने बताया ना, इट विल नॉट वर्क इफ लाइक आई आस्क यू बिटवीन डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, यहाँ पे आप थरली कंफ्यूज हो जाओगे. Okay, sir. ठीक है, सो बेटर अप्रोच इज टू एक्चुअली थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोड्स. Okay, sir. Thank you. ठीक है, सो आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है. यहाँ तक का मैं आपका पार्ट समझाना चाहता था दैट हाउ यूजिंग द वेव फंक्शंस हम लोग ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अगेन आई विल हाईलाइट दिस स्टेटमेंट दैट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट आप ऑर्बिटल का वेव फंक्शंस याद करने लग जाओ. ठीक है, बट अगर वेव फंक्शन लिखा आ जाए तो उससे आप ऑर्बिटल आइडेंटिफाई कर लो, वो एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रहेगी. ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो. dx square minus y square जैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिटल्स का नहीं आएगा ना? हाँ, मतलब इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. मतलब जैसे इनफैक्ट अगर आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिलेट करना है तो आप नोटिस करना, आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप याद है ऑर्बिटल का कैसा था? यस सर, अलोंग द y एक्सिस एंड x एक्सिस. अच्छा, अब आपको इसके नोड पता है, नोड कहाँ होंगे? सर मैंने गूगल किया था तो फिर वो बता रहे थे x plus y and x minus y ऐसा. ठीक है, ये 45 डिग्री के एंगल पर नोड्स होते हैं इसके नोडल प्लेन. यस सर. ठीक है, तो अब आप नोटिस करना, जैसे मान लो मैंने ये वाला प्लेन लिया. ठीक है, अब इस वाले प्लेन को अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दूं, ठीक है, तो यू विल गेट द पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन लाइक दिस, है ना? Yes, sir. अब इनका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? 45 डिग्री. 45. इसको यहाँ पे पुट करना. आर यू गेटिंग दिस टू बी 0? Yes. ठीक है, तो आप वैसे इसको समझ सकते हो. ठीक है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. और रेडियल वेव फंक्शन पे आप प्राइमरीली फोकस करना, एंगुलर पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी. ठीक है, जितना मैंने बेसिक बताया उतना आप ध्यान दे लो, उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए. ठीक है, And sir, in all of these types of questions where we have to find, like, figure out which one is which, we always have to project on the xy plane, right? नहीं फाई के लिए, बिकॉज आपको फाई का वैल्यू कंप्यूट करना है ना. अब जैसे So मुझे, these types of term I'm asking. हाँ हाँ, बिकॉज मुझे फाई इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. ठीक है, Okay. जैसे आप नोटिस करोगे, अगर मुझे डी एक्स जेड और डी वाई जेड के बीच में भी डिफरेंशिएट करना होगा तो कैन यू सी कि यहाँ तक का पार्ट तो एकदम ही सेम है दोनों का. व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस? The phi. इट इज द फाई टर्म. ठीक है, अगर मैं लाइक इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप नोटिस करोगे वापस से इतना टर्म तो एकदम ही सेम है. व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस? Phi. The phi term, right? So you will try to notice how the phi will be, especially of the points which are there on the nodal planes, and then try to answer what will be the correct orbital. Okay, sir. Thank you. ठीक है, सर ये टेबल बुक में लिखना है क्या नोट्स में? आप नोट्स में लिख के रखो, keep it handy, but not expected from you to rectify it. ठीक है, Okay. So can you explain that 3D x square minus y square thing again, which you were showing the nodal plane of it? जो 3D x square minus y square था उसका नोडल प्लेन आपको पता है कहाँ पर होता है? Yes, sir. 45 degrees from xy plane. है ना? तो अब ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, and this was a plane which is, you can say, along the z axis, like ये अंदर बाहर जा रहा है प्लेन,
हाँ सर. going inside out. So if you project all the points on this plane of this plane on the xy plane, तो वो क्या हो जाएंगे? They will be making this line on the xy plane. Yes sir. And what is the angle? What is the value of phi for these points? 45 degrees. 45 degrees. So if you put that over here, aren't you So it getting will be cos 90. Yeah sir. cos 90 degree हो जाएगा, cos 90 degree हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, है ना? So it this wave function justifies that this should be the angular node. So sir, in this also the xy plane will be the horizontal one only, right? Horizontal one as in? matlab I'm getting very confused as in how we make the xy plane. Which one will it be? आपकी इच्छा है, like it is up to you. This is the Cartesian coordinate system. ठीक है? You want to take this as the x-axis. You want to take this as the y-axis. This becomes the z-axis, right? Yes sir. So in Now, this if I ask you to draw the dx square minus y square orbital, how will you do? You yeah. will draw it in this way. Yes sir. Okay. If I ask you to draw the nodal planes, how will you do that? You will draw like इस तरीके से. This will be your nodal plane at a 45 degree angle. ठीक है? Yes sir. और this one मतलब ऐसा वाला at a 45 degree angle. So in both cases it will be along the x-axis, right? In this one, What will be along the x-axis? the nodal plane. The nodal plane is not along the x-axis. It is making a 45 degree angle with the x-axis. No. Okay. How is it along the x-axis? If it is along the x-axis, then how is it like passing through these lobes? Like how? Acha, yeah. ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि वो नोट्स वगैरह के डायग्राम खुद से ड्रॉ करना. Yes sir, I made those. हाँ, क्योंकि वो डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. Yeah. So the projection may lie on the z-axis also. Sorry? So the projection may lie on the z-axis also. The position? And the projection may lie on the z-axis also, no? Of this dx square minus y square. हाँ. The projection may lie na, on the z-axis. Why are you taking projection on the z-axis? But it may lie. No, I am not able to understand what you are trying to say. ये मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल बना दिया और ये इसके नोडल प्लेन्स भी ड्रॉ कर दिए. अब क्या चाहिए तुम्हें? तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? किसका पोजीशन? प्रोजेक्शन. किसका प्रोजेक्शन राजा? नोड्स का. ये नोड्स है. यस सर. ठीक है, अब इस नोड्स को कहाँ प्रोजेक्ट करना है आपको? सर कौन से प्लेन में होगा? एक्स वाई की जेड एक्सिस में होता है ना, उसकी लाइन जो होगी. अरे राजा, मैं क्यों प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऑन एक्स वाई प्लेन? व्हाई एम आई प्रोजेक्टिंग दिस ऑन द एक्स वाई प्लेन? बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई. नो. यस सर. ये फाई जो है इसका कैलकुलेशन ऐसे ही होता है ना. The angle measured from the x-axis to the projection on the xy plane. Yes, sir. तो यहाँ पर ये जो नोडल प्लेन है, मुझे I want to calculate what? तुम यार इंग्लिश नहीं पढ़ते क्या? यहाँ पर जब मैंने इस एक्सप्लेन किया, मेरा ऑब्जेक्टिव था what will be the value of phi for the points on the exact plane. ये जो नोडल प्लेन पे पॉइंट्स है उनका phi मैं निकालना चाह रहा था. phi कैसे निकालते हैं? XY plane. I project the point on the xy plane and then notice what angle it is making with the x-axis. That is what gives me the phi value. Got it. तो वही तो मैं कर रहा हूँ. मैं मन मर्जी से थोड़ा ना कर रहा हूँ कि xy plane पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ.
मुझे फाई निकालना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, देन आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। कल इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे एंड आई थिंक कल या परसों दोनों ही लेक्चर्स में हम लोग ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir.